کم بیک لاہور کے علاقے اچرا میں ہولناک واردات، گھر سے 3 کمسن بچوں کی لاشیں برآمد ہوئی ہیں۔ پولیس کے مطابق بچوں کو گلا کاٹ کر قتل کیا گیا ہے۔ پولیس نے والدین اور چچا کو حراست میں لے لیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے فوراً رپورٹ طلب کر لی۔ جہانگیر خان اپنی رپورٹ کے ساتھ۔ اور کے علاقے اچرا میں انسانیت کو جھنجھوڑ دینے والا افسوسناک واقعہ، گھر سے 3 معصوم بچوں کی لاشیں ملی جنہیں بے دردی سے گلے کاٹ کر قتل کیا گیا۔ بندہ کوئی واقف ہے جس نے کٹھے بچوں کو قتل نہیں کر سکتا، کوئی تینوں کو، پہلے سب سے بڑے بچے کو اس نے ٹھکانے لگایا، پھر اس سے چھوٹے کو، تو چھوٹا بچہ تو پھر ہے ہی چھوٹا۔ پولیس کے مطابق جاں باک ہونے والے بچوں میں 1 بچہ اور 2 بچیاں شامل ہیں جن کی عمریں 1 سے 6 سال کے درمیان بتائی جا رہی ہیں۔ والدین کے مطابق وہ گھر کو تالا لگا کر مارکیٹ گئے، واپس آئے تو واردات ہو چکی تھی۔ میڈیکل سٹور سے میڈیسن لینے کے لیے گئے ہیں تو واپس آئے تو واپس سلامت بچے نہیں ملے ان کو۔ کوئی ایسی وجہ بھی پتہ بھی نہیں چل رہی، یہ بعد میں پتہ چلے گی وجہ کیا بنی ہے کیا نہیں بنی، اس کے والدین سے پتہ چلے گا نا۔ پولیس نے شک کی بنیاد پر بچوں کے چچا کو حراست میں لیا۔ والدین سے پوچھ گچھ کی گئی تو معاملے نے نیا رخ اختیار کر لیا۔ ماں باپ کو بھی شامل تفتیش کر لیا گیا ہے۔ قتل کی وجوہات کیا ہیں، اس کے محرکات کیا ہیں، کون لوگ اس میں شامل ہیں، کون ملزم ہیں، یہ بالکل آپ کے سامنے لائی جائیں گی۔ پولیس اپنی پوری تفتیش کرے گی اور ایک ایک چیز ٹرانسپیرنٹ ہوگی۔ پولیس کے مطابق لاشوں کے قریب ملنے والی چھری بھی تحویل میں لے لی گئی ہے۔ علاقے میں لگے CCTV کیمروں کی مدد سے بھی تفتیش کو آگے بڑھایا جا رہا ہے۔ جہانگیر خان، سما، لاہور۔ اچرا میں 3 بچوں کے قتل کی واردات، پولیس نے بچوں کے چچا اور والدین کی نقل و حرکت کی CCTV فوٹیج حاصل کر لی ہے۔ پولیس کے مطابق بچوں کو قتل کرنے کے بعد کرائم سین کو بدلنے کی کوشش کی گئی ہے۔ زیر حراست افراد کے بیانات میں تضاد بھی پایا گیا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، خانیوال کے علاقے کوٹ مدینہ میں ڈکیتی کی لرزہ خیز واردات ہوئی۔ مزاحمت پر ماں اور 10 سال کے بیٹے کو قتل کر دیا گیا۔ تفصیلات حماد حسین کی رپورٹ میں دیکھیے۔ خانیوال کے علاقے کوٹ مدینہ میں رات کی تاریکی میں ہوئی ڈکیتی کی لرزہ خیز واردات، مزاحمت ایک خاندان کے لیے قیامت بن گئی۔ مسلح ڈاکو گھر میں داخل ہوئے اور اہل خانہ کو یرغمال بنا لیا۔ 34 برس کی فرحانہ بی بی نے بچوں کو بچانے کی کوشش کی مگر اس کی جرت جان لیوا ثابت ہوئی۔ ڈاکوؤں نے ماں اور اس کے ساتھ موجود 10 سال کے بیٹے حسن کو بے دردی سے قتل کر دیا۔ مما نے کہا نہیں، اس نے اسے مار کے کانٹے بھی لے گیا، موبائل بھی، پیسے بھی، بھیا کو بھی مار گیا۔ ملزمان واردات کے بعد گھر سے زیورات اور موبائل فون لوٹ کر فرار ہو گئے۔ 2 کم عمر بچے، 3 سال کی ہانیہ اور 4 سال کا شابان محفوظ رہے۔ متاثرہ گھر میں کوہرام اور چیخو پکار کا عالم، جبکہ پولیس کا وہی بیان کہ ملزمان کی گرفتاری کے لیے کارروائی جاری ہے۔ انویسٹیگیشن کی ٹیمیں ترتیب دیں، انشاءاللہ ہم بہت جلد جو اس کے ریل کلپریٹ ہیں ان تک پہنچ جائیں گے انشاءاللہ۔ دل دہلا دینے والے واقعے کے بعد علاقے میں شدید خوف و ہراس پایا جاتا ہے۔ شہریوں نے ملزمان کی فوری گرفتاری کا مطالبہ کیا ہے۔ حماد حسین، سما، خانیوال۔ جبکہ حیدرآباد کے علاقے پھلیلی میں شادی کے گھر میں صف ماتم بچھ گئی۔ شادی میں آئے 3 بچے کرنٹ لگنے سے جاں بحق ہو گئے۔ امتیاز علی کھاور رپورٹ کریں گے۔ شادی کی خوشیاں ماتم میں تبدیل۔ شادی کی تقریب میں شرکت کے لیے شہداد پور سے آئے 3 بچے گھر کی چھت پر سونے کے لیے گئے۔ صبح کے وقت ایک بچہ چھت سے گزرنے والی 11,000 وولٹ کی تاروں سے ٹکرا گیا، جسے بچاتے ہوئے 2 بچے موقع پر جاں بحق ہو گئے۔ جاں بحق ہونے والے بچوں میں 14 سال کا عبد الرحمان، 10 سال کا فیضان اور 12 سال کا نوید شامل ہے۔ ایک کو بچانے کے چکر میں ایک اس کا سگا بھائی، ایک اس کے چاچا کا بیٹا، وہ دونوں بھی موقع پہ ہی ہلاک ہو گئے تھے۔ پہلے بھی کئی حادثات اس میں ہو چکے ہیں، کئی جانیں جا چکی۔ ابھی بھی یہ بے بسی کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ ابھی بھی کوئی واپڈا کا نمائندہ نہیں آیا، کوئی ان سے پوچھنے حال نہیں آیا کہ کیسے ہوا، کیوں ہوا۔ ایکسین ہیسکو زہیب شیروانی کا کہنا ہے ہائی وولٹیج تاروں کی تنصیب کے بعد لوگوں نے غیر قانونی تعمیرات کی، جس کے باعث بجلی کی تاریں گھروں کی چھتوں اور دیواروں کے انتہائی قریب آ چکی ہیں۔ ہیسکو کی جو لائن ہے وہ آلریڈی پہلے سے وہاں پہ موجود ہے۔ لوگوں نے وہاں پہ 11,000 کی لائن کے نیچے انکروچمنٹ کی ہوئی اپنے گھر آگے بڑھائے ہوئے۔ ٹنڈو طیب میں ہونے والے المناک حادثے پر علاقے کی فضا سوگوار ہے۔ کیمرامین جمیل پٹھان کے ساتھ امتیاز علی کھاوڑ، سما، حیدرآباد۔ اور راولپنڈی کے بے نظیر بھٹو اسپتال میں OPD کا بیسمنٹ ایریا مدتوں سے تالاب کا منظر پیش کرتا ہے۔ زیر زمین پانی کا رساؤ 2 دہائیوں سے زائد عرصے سے جاری ہے۔ نیچے والی منزل ناکارہ ہو چکی ہے۔ اسپتال انتظامیہ کا کہنا ہے کہ متعلقہ صوبائی محکمے کو کئی بار تحریری طور پر آگاہ کیا گیا لیکن کوئی سنوائی نہیں ہوئی۔ عمر بن آصف رپورٹ کریں گے۔
मंजर है बेनजीर भुट्टो अस्पताल अलमारूफ जनरल अस्पताल रावलपिंडी में ओपीडी बेसमेंट का, जहां जेरे जमीन पानी का रिसाव गुज़िश्ता 2 दहाइयों से जायद अरसे में जेरी मंजिल को निगल चुका। रोजाना 2500 से जायद मरीजों को इलाज की सहूलत देने वाली ओपीडी खुद साल से लाइलाज है। हमने 23, 24, 25 में बिल्डिंग डिपार्टमेंट को भी लिखा, बिल्डिंग डिपार्टमेंट वाले रिसर्च डिपार्टमेंट को लिखा। गवर्नमेंट ने ओनली सीवरेज लाइन इसकी अप्रूव की और अभी जो हम डेली बेसिस पे जो है इसको मोटर लगा के हम पानी को बाहर निकालते हैं। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक पानी की रोजाना की बुनियाद पर निकासी महंगा और आर्जी इकदाम है, जिससे सिर्फ वसाइल ही ज़ाया नहीं हो रहे, माहौल और इमारत की बुनियादों को भी शदीद नुकसान पहुँचता है। मुतलका हुक्काम को इस पर फौरी तवज्जो देने की जरूरत है। कैमरामैन जुल्फ़िकार अली के साथ उमर आसिफ, समा, रावलपिंडी। अभी वेलकम बैक। अब आपको बताएं कि आलमी बैंक और IMF ने तरक्की पजीर ममालिक के लिए रोजगार की फराहमी को बड़ा मसला करार दे दिया है। पाकिस्तान में भी तेजी से बढ़ती आबादी के लिए नौकरियों के मौके कम होने का खदशा पैदा हो गया है। रिपोर्ट ये बताती है कि तरक्की पजीर ममालिक में अगले 10 से 15 साल में 1 अरब 20 करोड़ नौजवान रोजगार के काबिल होंगे। आलमी बैंक की जानिब से रुकन ममालिक के लिए 80 से 100 अरब डॉलर तक इमदाद मुतवक्के है। सदर आलमी बैंक के मुताबिक रोजगार गुर्बत कम करने का सबसे मौसर जरिया है। वर्ल्ड बैंक ने रोजगार बढ़ाने के 5 अहम शोबों की निशानदही भी कर दी है। इनमें तवानाई, इंफ्रास्ट्रक्चर के मंसूबे, ज़राअत और एग्री बिजनेस में नौकरियों के बड़े मौके मौजूद हैं। सेहत का शोबा भी रोजगार पैदा करने में अहम है, जबकि सयाहत के फरोग और वैल्यू एडेड मैन्युफैक्चरिंग से भी मईशत और रोजगार में इजाफा मुमकिन है। वेलकम बैक। सबसे पहले आपको बताते हैं कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने आपने हुर्मुज में ईरानी कश्तियों पर हमले का हुक्म जारी कर दिया है। सोशल मीडिया पर पैगाम में कहा कि आपने हुर्मुज में जो कश्ती बारूदी सुरंग बिछाए उसे तबाह कर दिया जाए। ईरानी कश्तियां आपने हुर्मुज में बारूदी सुरंगें बिछा रही हैं। आपने हुर्मुज में बारूदी सुरंगों की सफाई का काम जारी है। ट्रंप ने लिखा कि अमेरिकी माइन स्वीपर्स इस वक्त आपने हुर्मुज को साफ कर रहे हैं। हम अब तक ईरान के 159 बहरी जहाज समंदर में गर्क कर चुके हैं। जबकि खिते में अमन और इस्तेहकाम की कोशिशें जारी हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत अहम मुशावरती इजलास इस्लामाबाद मुज़ाकरात के दूसरे मरहले के इनकाद के लिए जारी कोशिशों का जायजा लिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने उम्मीद जाहिर की है कि ईरान और अमरीका को जल्द मुज़ाकरात की मेज़ पर दोबारा बिछाने में कामयाब हो जाएंगे। पाकिस्तान मशरिक़ वस्ता में पायदार अमन के लिए सिफारती कोशिशें जारी रखेगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने मुख्तलिफ ममालिक के वज़ीर ख़ारिजा से राबतों पर इजलास के शुरका को एतमाद में लिया। अहम मुलाकात का जिक्र करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चीनी सफ़ीर की मुलाकात, मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल और पाकिस्तान की अमन की कोशिशों पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म का चीन के सदर और वज़ीर आज़म के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार, पाक चीन दो तरफ़ा ताल्लुकात को इत्मीनान बख्श करार दिया। शहबाज शरीफ का कहना था कि पाकिस्तान को चीन के साथ स्ट्रेटेजिक शराकतदारी पर फ़ख्र है। करीबी ताउन से दो तरफ़ा ताल्लुकात मजबूत से मजबूत तर होंगे। उन्होंने चीनी क़यादत के साथ करीबी ताउन जारी रखने का आज़म दोहराया। चीनी सफ़ीर ने नेक ख्वाहिशात पर वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा किया। खित्ते में अमन के लिए सिफारती काविशों को सराहा गया। उन्होंने चीनी सदर के विजन के मुताबिक पाकिस्तान से दोस्ती नई बुलंदियों तक ले जाने का आज़म भी दोहराया। आगे बढ़ेंगे। अमरीकी फौज ने नाकाबंदी की खिलाफ वर्जी पर एक और जहाज को कब्जे में ले लिया है। अमरीकी महकमा जंग ने वीडियो जारी कर दी है। बयान में कहा गया है कि मैजेस्टिक एक्स नामी बहरी जहाज बुहरा हिंद में ईरान से तेल ले जा रहा था। दुनिया भर में बहरी कवानीन के नफाज के लिए कार्रवाइयां जारी रखेंगे। बैनुल अक़वामी समुद्री हुदूद को ढाल के तौर पर इस्तेमाल नहीं होने देंगे। और ईरानी सदर मसूद पिज़ेश्कियान ने इस्राएली हमलों की वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर कर दी है। वीडियो के साथ पैगाम में नर्स निदा सलीमी का जिक्र भी किया है। लिखा कि प्यारी बेटी और उन सब लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं जो साबित कदम रहे। आगे बढ़ते हैं। चीन भी अमेरिका और ईरान के दरमियान कशीदगी कम कराने की कोशिश कर रहा है। अमेरिकी मीडिया तफसीलात मंजर आम पर ले आया। AP की रिपोर्ट के मुताबिक चीन ईरान जंग में आलमी ताकत के तौर पर अपना किरदार अदा कर रहा है, क्योंकि अमेरिका की पॉलिसीज की वजह से इसके पुराने इत्तेहादियों के साथ ताल्लुकात में कशीदगी पैदा हो रही है। ईरानी पार्लियामेंट के डेप्यूटी स्पीकर हामिद रजा का कहना है कि आपने हुर्मुज से गुजरने वाले जहाजों पर आए टूल
से हासिल होने वाली पहली आमदनी मरकजी बैंक के अकाउंट में जमा करा दी गई है। ईरानी मीडिया ये रिपोर्ट करता है कि डेप्यूटी स्पीकर ने इस बारे में मजीद तफसीलात नहीं बताई कि ये आमदनी किस से और कैसे वसूल की गई है। जबकि दूसरी तरफ इंडोनेशिया ने आबनाए मलाका से गुजरने वाले जहाजों पर टैक्स लगाने का ऐलान कर दिया है। हुकाम के मुताबिक इंडोनेशिया अहम तिजारती और तवानाई की गुजरगाह पर वाक़ है। सिंगापुर हुकाम का कहना है कि आबनाए मलाका की बंदिश और जहाज रानी पर टैक्स का हिस्सा नहीं बनेंगे। आबनाए मलाका इंडोनेशिया, सिंगापुर और मलेशिया के दरमियान वाक़ है। ईरान के जिलावतन रहनुमा रजा पहलवी पर एक शख्स ने लाल पेंट फेंक दिया। रजा पहलवी पर पेंट बर्लिन में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से पहले फेंका गया। वीडियो मंजर-ए-आम पर आ गई। आगे बढ़ते हैं। आबनाए हुर्मुज़ में रुकावटों के बायस यूरोप की फिजाई सनत को खलीजी ममालिक से जेट फ्यूल की कमी का सामना है। एयरलाइंस और हुकूमती रोशनिंग परवाज़ों की मनसूखी और हंगामी ईंधन बांटने जैसे इक़दामात पर गौर कर रही है। आलमी तवानाई एजेंसी के सरबराह का कहना है कि यूरोप के पास सिर्फ 6 हफ्तों का जेट फ्यूल बाकी है। अंदाजों के मुताबिक दुनिया भर में जेट फ्यूल की समुद्री फराहमी का तकरीबन 5वां हिस्सा कट चुका है। ट्रांसपोर्ट एंड एनवायरनमेंट के मुताबिक यूरोप की कुल दरामदात का तकरीबन 30% आबनाए हुर्मुज़ से जुड़ा हुआ है। जंग के आगाज से जेट फ्यूल की कीमतों में 95% इजाफा हुआ। अप्रैल के वस्त में आलमी सतह पर फी टन कीमत $1458 रही, जो गुज़िश्ता साल के मुकाबले में दुगनी हो चुकी है। यूरोप 5 से 7 हफ्तों में बड़े पैमाने पर एयरपोर्ट किल्लत का सामना करेगा। लुफ्थहांसा ने ऐलान किया है कि वो मौसम गर्मा में 20,000 कम परवाजें चलाएगी ताकि ईंधन को बचाया जा सके। जबकि इटली के एयरपोर्ट्स ने भी राशनिंग शुरू कर दी है। आगे बढ़ते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से मारूफ बरतानवी नजात पाकिस्तानी डॉक्टर हसनात खान ने मुलाकात की है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने डॉक्टर हसनात खान को जिना इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी की जिम्मेदारी संभालने पर मुबारकबाद दी। इंग्लैंड से पाकिस्तान आकर हम वतनों की खिदमत के जज्बे को खराज तहसीन पेश किया। मुलाकात में नौ तामीर शुदा जिना इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी से मुतालिक इंतजामी उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आला पंजाब ने जिना इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी को बेहतरीन इदारा बनाने के आज़म का यादा किया। मरीम नवाज का कहना था कि खुशी है पाक धरती के सुपूत ने अपने गरीब हम वतनों की खिदमत का रास्ता चुन लिया। पंजाब ही नहीं, पाकिस्तान के हर फर्द को दिल के अमराज के इलाज की बेहतरीन सहूलियात फराहम करने के लिए कोशा है। पाकिस्तान का LNG की स्पॉट खरीदारी का फैसला। पाकिस्तान LNG लिमिटेड ने 3 LNG कार्गोस के लिए बोलियां तलब कर ली हैं। आलमी कंपनीज कल तक अपनी बोलियां जमा करा सकती हैं। बिड्स कल ही खोली जाएंगी। 3 कार्गोस की बोलियां अप्रैल और मई के लिए तलब की गई हैं। अब आपको बताएंगे मक्कार दुश्मन भारत। जहां गुज़िश्ता साल पहलगाम फॉल्स ऑपरेशन के बाद गोदी मीडिया के सहारे दुनिया के सामने मजलूम बनने की नाकाम कोशिश करता रहा, तो वहीं पर भारत ने गुज़िश्ता साल सरहदी इलाके सरजवाल में माल मवेशियों के हमरा गलती से लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब जाने वाले 2 बेगुनाह कश्मीरियों को गिरफ्तार करके फेक एनकाउंटर के जरिए शहीद कर दिया था। मजीद जानते हैं लाइन ऑफ कंट्रोल के हेडवरी सेक्टर में मौजूद समा के नुमाइंदे अमीरुद्दीन मुगल ने हमें ज्वाइन किया है। अमीर, क्या सूरत हाल है? इस वक्त बडोरी सेक्टर के गांव सरजीवाड़ में, और यहाँ पर जो है गुज़श्ता साल भारतीय फ़ौज की जानिब से यहाँ के 2 मासूम शहरी जो कि अपने भेड़ बकरियों माल मवेशी के साथ थे उनको यहाँ शहीद किया, और उसके बाद उनको एक जैली मुकाबला शो करते हुए उसको कहा गया कि ये दहशतगर्द है। और इस तरह से कंट्रोल लाइन के जो लोग हैं उनको आए रोज़ भारतीय मुजालम का सामना करना पड़ता है। ये कौन थे 2 शहरी, और इसके जो रिश्तेदार हैं एक हमारे साथ मौजूद हैं। क्या बताएंगे कि क्या वाकया हुआ था उसे? चौधरी सीतू साहब हमारे रिश्तेदार हैं, तो वो एक गरीब आदमी है, माल मवेशी चरवाते हैं, और वो अपने माल मवेशी को लेके गए थे LOC वापस लाने के लिए, तो उनको भारतीय फौज ने बिला इश्तार फायरिंग करके जो शहीद किया गया। तो उसके बाद हमने देखा मार के हक होते हुए, जिसमें पाक फौज ने हमारे तमाम शहीदों का साथ बराबर किया। 2 गाँव हैं, जो मेरा अपना गाँव है ख्वाजा बांडी, इसके बिल्कुल सामने है, और ये सरजीवाड़ गाँव है। यहाँ पे उनकी फायरिंग अक्सर व बेशतर जारी रहती है, और स्नाइपर से भी शूट करते रहते हैं। तो ये जो 2 लोग हैं, ये बड़ा अफसोसनाक वाकया है कि ये भी माल मवेशी के साथ गए थे उनको वापस लाने के लिए शाम के वक्त, और उनको जो है वो शहीद कर दिया। हिंदुस्तान ने जो एक अटैक किया था उसका जब भरपूर जवाब दिया, उनके जायशाज गिराए, तो उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे लोग जो है वो अमन से रह रहे हैं। और हम यहाँ के लोग जो हैं वो खासकर फील्ड मार्शल जो सैयद आसम मुनीर और पाकिस्तानी फौज जो है उसके शुक्रगुजार हैं। बिल्कुल, यहाँ के मुकीनों की गुफ्तगू सुनी आपने, और
یہ صرف ایک گاؤں کا واقعہ نہیں ہے، لائن آف کنٹرول پر ایسے بے شمار واقعات پیش آتے رہے ہیں، لیکن گزشتہ ایک سال سے علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ وہ پرامن زندگی گزار رہے ہیں، کوئی ایسا واقعہ پیش نہیں آیا۔ جی آپ کا بہت شکریہ۔ پاکستان نے پہلگام واقعے سے متعلق بھارتی الزامات مسترد کر دیے ہیں۔ ترجمان وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ پہلگام واقعے سے متعلق بھارتی الزامات بے بنیاد اور پروپیگنڈا ہے۔ بھارت داخلی سیاسی مفادات کے لیے پاکستان کے خلاف جھوٹے بیانیے کو ہوا دے رہا ہے۔ بھارتی الزامات کا مقصد خطے میں اپنی سرگرمیوں سے توجہ ہٹانا ہے۔ پاکستان خطے اور دنیا میں امن و استحکام کے لیے سفارتی کوششوں کو جاری رکھے گا۔ آگے بڑھتے ہیں۔ بڑی خبر یہ ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ایران پر بہت برا وقت آنے والا ہے۔ ایران فیصلہ نہیں کر پا رہا کہ ان کا اصل لیڈر کون ہے۔ امریکہ کا آبِ ہرمز پر مکمل کنٹرول ہے۔ جب تک ایران معاہدہ کرنے کے قابل نہیں ہو جاتا، آبِ ہرمز بند رہے گی۔ آگے بڑھتے ہیں۔ غزہ میں چوہوں کی یلغار، کیمپس میں مقیم فلسطینی خوف کا شکار، بچوں کی زندگی خطرے میں پڑ گئی ہے، کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے۔ فلسطینیوں کا کہنا ہے کہ چوہے انسانی باقیات کھا کر مزید خونخوار ہو چکے ہیں۔ رات ہوتے ہی ان کے حملے بڑھ جاتے ہیں، بڑی تعداد میں لوگ زخمی ہو چکے ہیں۔ خیموں میں زندگیاں گزارنا انتہائی مشکل ہو چکا ہے، راتیں جاگ کر گزارنے پر مجبور ہیں، ہر طرف خوف کے سائے ہیں۔ خیموں میں مقیم افراد کا کہنا ہے کہ جنگ سے پہلے چوہے نہیں تھے، لیکن اب تعداد بڑھ چکی